Okay, so this lecture is about nitrogen cycle. What is nitrogen cycle? We know nitrogen is present in the atmosphere. That nitrogen is converted into ammonium and then it is taken in by the plants. The plants are eaten by the animals. Then there is a death and decay of the plants and animals, and that nitrogen is converted back into that nitrates and organic compounds, and ammonium is converted back into nitrates, and then finally into nitrogen and goes to the atmosphere. So this is the nitrogen cycle. So here we are discussing that how this nitrogen is converted first into ammonium, then by the plants and animals, then there is a death of the plants and animals, and it goes back to the ammonium and then nitrites and so on. So we are discussing this thing. We know nitrogen is present in atmosphere, and that atmospheric nitrogen is about 78% or 80% of the atmosphere. But this nitrogen, which is known as atmospheric nitrogen, is of no use for plants and animals. This is of no use for plants and animals. उनके लिए ये किसी काम का नहीं है until it is converted into ammonium. So the conversion of nitrogen into ammonium is called nitrogen fixation. This is called nitrogen fixation. Nitrogen fixation, and this nitrogen fixation is can be done by different methods. Okay, this is by physical methods, and the physical methods, which is also known as during thunderstorm. During thunderstorm, the energy is available, and the atmosphere, in the nitrogen present in the atmosphere react with the hydrogen, and then it is converted into ammonia. This is known as physical method during thunderstorm. Then there is a chemical method. The same process is carried out in fertilizer industries. In fertilizer industries, energy is used. The energy is used to carry out this reaction, and the atmospheric nitrogen is converted into ammonia and ammonium, and then different types of fertilizers are formed. But this process is an expensive this is an expensive process when it is done in industries, because lots of energy is used in this process. Lots of energy is used during this process. But the most important and economical process is the biological methods. Is the biological methods. And the biological methods, the microbes, the bacteria and cyanobacteria are involved in this process. Bacteria and cyanobacteria are involved in this biological nitrogen fixation. The biological nitrogen is further of two types. One is known as symbiotic nitrogen fixation. Symbiotic nitrogen fixation, and the other one is known as non-symbiotic nitrogen fixation. So the biological nitrogen fixation is of two types: the symbiotic nitrogen fixation and the non-symbiotic nitrogen fixation. Now, what is symbiotic nitrogen fixation?
Okay, symbiotic nitrogen fixation, where in the symbiotic nitrogen fixation, bacteria in the symbiotic nitrogen called rhizobium, bacteria called rhizobium live in the root nodules of leguminous plants. Okay, live in the root nodules of leguminous plants, and there they are involved in nitrogen fixation. Now, what are nodules? Nodules are the cavities formed by leguminous plants. So, what are leguminous plants? Leguminous plants are those plants which form legumes as their fruits. That includes peanuts. Yes, that includes peanuts. That includes trifolium. That includes pea and so many other type of plants. Okay, their fruits are called legumes. So their fruits are called legumes. Therefore, the plants are called leguminous plants, the plants which produce legumes. They have special types of cavities in their roots, and these cavities are called nodules. So the bacteria live in their cavities in the nodules, and the association between the plants and bacteria is symbiotic. That association is symbiosis. For example, this is a plant, and these are the roots. So in the roots there are legumes. This is the plant, and they have the roots, and the roots have these types of legumes, and these legumes have bacteria inside. So these bacteria are converting what nitrogen and hydrogen reacting together and converting nitrogen into ammonia and ammonium ion, and in response the bacteria obtain food and energy from the plants. So therefore the association is known as symbiotic association. So this is the symbiotic nitrogen fixation. What is the non-symbiotic nitrogen fixation? Non-symbiotic nitrogen fixation, again it is done by certain bacteria and cyanobacteria. This is done by bacteria, and cyanobacteria are involved in this process. Bacteria and cyanobacteria are involved in this process. Now, what type of bacteria are involved in this process? Okay, so the bacteria in this process, the bacteria involved in this process are Azotobacter. Okay, Azotobacter. Azotobacter is aerobic bacteria in soil, and they are involved in converting atmospheric nitrogen into its ammonium, into its compound. The other type is Clostridium. Clostridium. This is the anaerobic bacterium. Anaerobic bacteria. Anaerobic bacteria means they live in anaerobic condition. They don't need oxygen for respiration, and they are also present in soil, and both these type of bacteria are involved in non-symbiotic nitrogen fixation. Why they are called non-symbiotic? Because they are present freely in the soil, and there they are converting atmospheric nitrogen into its compounds. Okay, so this is.
Now there are cyanobacteria which are also involved in non-symbiotic nitrogen fixation, and these cyanobacteria nostoc, free living and involved in nitrogen fixation, converting. This is free living cyanobacterium nostoc. Okay, the second one is known as Anabina. Anabina is associated with azolla. Azolla is a hydrophytic plant. Azolla is a hydrophyte. You know hydrophyte, the plants which live in. So ये इनके leaves के साथ ये जो एनाबीना है ये हाइड्रोफाइट के साथ इस एजोला के साथ एसोसिएशन में होता है. उनके जो यंग लीव्स होता है वहाँ पर रहता है और नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है. ठीक. सो टू समराइज इट, हमारे पास 3 किस्म की नाइट्रोजन फिक्सेशन है. नाइट्रोजन फिक्सेशन का क्या मतलब कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को उसके कंपाउंड में कन्वर्ट करना. फिजिकल मेथड्स जो कि ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म, जब आसमानी बिजली गिरती है वहाँ पर एनर्जी है और उस दौरान एटमॉस्फेयर के अंदर ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन एक दूसरे के साथ रिएक्ट करता है, नाइट्रेट्स और अमोनियम बनता है. केमिकल मेथड जो इंडस्ट्रीज़ में है. बायोलॉजिकल मेथड्स वो हैं जो कि जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व हैं. यूजुअली दिस इज़ डन बाय माइक्रोब्स, बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया. ये 2 किस्म का है, सिम्बायोटिक, नॉन सिम्बायोटिक. सिम्बायोटिक में मैंने आपको एग्जांपल दिया राइजोबियम का जो कि रूट नोड्यूल्स में रहता है और वहाँ पर नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है. नॉन सिम्बायोटिक में बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया इन्वॉल्व हैं. बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया आर इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस. सो बैक्टीरिया में हमारे पास फिर 2 किस्में मैंने आपको कही, एजोटोबैक्टर एंड क्लॉस्ट्रीडियम. एजोटोबैक्टर एरोबिक है, ठीक, और क्लॉस्ट्रीडियम एनएरोबिक है. दोनों फ्री लिविंग है, सॉइल में होते हैं और नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं. नास्टॉक और एनाबीना एग्जांपल है साइनोबैक्टीरिया का. ओके, एंड नास्टॉक फ्री लिविंग है और एनाबीना जो है ये एसोसिएटेड विद एजोला, तो इस वजह से इसको एनाबीना एजोली भी कहते हैं इस ग्रुप को. अच्छा, अब ये सारे बैक्टीरिया जिस वजह से नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, ये सारे बैक्टीरिया जिस वजह से नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, उन बैक्टीरिया के अंदर एक एंजाइम है और उसको हम कहते हैं क्या, नाइट्रोजिनेज. ये जितने भी नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिजम्स है, बैक्टीरिया है या साइनोबैक्टीरिया है, दे हैव गॉट एन एंजाइम नाइट्रोजिनेज. ये नाइट्रोजिनेज 2 काम करता है. ये इस प्रोसेस को, ये प्रोसेस है नाइट्रोजन हाइड्रोजन और उस दौरान अमोनिया आयन बनता है या अमोनिया बनता है, इसको एटीपी प्रोवाइड करता है, मींस एनर्जी प्रोवाइड करता है. और दूसरा ये कि उसको हाइड्रोजन के साथ, नाइट्रोजन को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराता है. ये नाइट्रोजिनेज का काम है. ये नाइट्रोजिनेज जो है, बट नाइट्रोजिनेज इज सेंसिटिव टू ऑक्सीजन. अगर जहाँ पर ऑक्सीजन होगा तो वो ऑक्सीजन आकर नाइट्रोजिनेज को ऑक्सीडाइज करेगा, उसकी ब्रेकडाउन करेगा. तो इस वजह से हम कहते हैं कि दिस इज सेंसिटिव टू ऑक्सीजन. नाइट्रोजिनेज इज सेंसिटिव टू ऑक्सीजन. अब ये है कि प्लांट्स किस तरह अपने आप को इस बैक्टीरिया किस तरह इस नाइट्रोजिनेज को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम ऑक्सीजन. सो दे हैव डिफरेंट मैकेनिज्म. अब एनएरोबिक ऑर्गेनिज्म जो है, एनएरोबिक, कौन सा एग्जांपल मैंने दिया एनएरोबिक का? एनएरोबिक का एग्जांपल मैंने आपको दिया क्लॉस्ट्रीडियम. तो उसके लिए तो मसला नहीं है. क्लॉस्ट्रीडियम बिकॉज दे लिव इन एनएरोबिक एनवायरनमेंट, वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, तो इस वजह से उनको मसला नहीं होगा क्योंकि नाइट्रोजिनेस प्रोटेक्ट रहेगा. लेकिन इन केस ऑफ एजोटोबैक्टर जो कि एरोबिक एनवायरनमेंट में रहता है, तो एनएरोबिक बैक्टीरिया हैव नो इशू अबाउट protecting their nitrogenase. Okay, उसको मसला नहीं है. बट द प्रॉब्लम इज फॉर एरोबिक
but aerobic bacteria have the issue. ओके ये जो एरोबिक बैक्टीरिया है उनको मसला होगा कैसे प्रोटेक्ट करें. तो ये जो एरोबिक बैक्टीरिया है उनके पास बहुत तरीक़ेकार होते हैं. नंबर वन, दे एरोबिक बैक्टीरिया हैव हायर रेट ऑफ रिस्पायरेशन. तो जितना भी ऑक्सीजन अवेलेबल होता है वो रिस्पायरेशन में इस्तेमाल होगा और वो ऑक्सीजन नहीं इस्तेमाल होगा टू ब्रेक डाउन नाइट्रोजनेस. सो दे कैन प्रोटेक्ट देयर they can protect their nitrogenase by keeping their rate of respiration higher. और जब हाई रखेगा उसको तो इस वजह से लॉट्स ऑफ ऑक्सीजन जो आएगा वो बजाय के नाइट्रोजनेस की ब्रेक डाउन करे वो फूड की ब्रेक डाउन में इस्तेमाल होगा, रिस्पायरेशन में इस्तेमाल होगा. ओके, दिस इज़ वन ऑफ द मैकेनिज्म. कुछ होते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल जो एज एग्जाम्पल मैंने दिया रूट नॉड्यूल्स का. सो रूट नॉड्यूल्स आर फ्री ऑफ ऑक्सीजन, तो इस वजह से वहाँ पर जो नाइट्रोजनेस है वो ऑक्सीजन से प्रोटेक्ट रहेगा. कुछ इसमें है वो बहुत डाउन रहते हैं, डाउन द अर्थ रहते हैं और वहाँ पर इतने गहराई में होते हैं जहाँ पर ऑक्सीजन ऑलमोस्ट एब्सेंट रहता है. सो दे हैव डिफरेंट मैकेनिज्म टू प्रोटेक्ट. ओके, अब हमने ये पढ़ा, अभी तक हमने ये पढ़ा कि नाइट्रोजन इज़ कन्वर्टेड इनटू अमोनियम. ओके, हमने ये पढ़ा, या हम कहते हैं इट इज़ कन्वर्टेड इनटू अमोनिया. सो दिस अमोनियम या अमोनियम आयन इज़ टेकन इन बाय द प्लांट्स उसको इस्तेमाल करेगा एंड विल कन्वर्ट दैट नाइट्रोजन into their proteins, into their lipids, into their DNA, into their RNA. You know, the plants are taken by the animals and again the plants will convert that into proteins and the animals will convert into DNA, into lipids, into सबका up into chlorophyll वगैरह जो plants में है. तो ये नाइट्रोजन जो है तकरीबन तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ये नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है. इन सम कार्बोहाइड्रेट्स एज वेल नाइट्रोजन इज प्रेजेंट देयर. ओके, ये नाइट्रोजन वहाँ पे होगा. लेकिन वी नो कि दिस नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, और प्लांट्स और एनिमल्स की डेथ और जब डेथ और उसके बाद डिके होगी तो ये नाइट्रोजन जो है वहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे, उनकी क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे. और जब ब्रेक डाउन होगी इनकी, सो वहाँ पर उनकी ब्रेक डाउन होगी. जब ब्रेक डाउन होगी सो द प्रोटीन्स, द DNA आर ब्रोकन डाउन इनटू अमीनो एसिड. अमीनो एसिड के बाद उनकी ब्रेक डाउन होगी फाइनली इनटू अमोनियम, उनमें उनकी ब्रेक डाउन होगी. ओके, और ये यहाँ पर इस प्रोसेस में ये जो प्रोटीन्स की ब्रेक डाउन होगी और ये जो प्रोटीन की ब्रेक डाउन होगी और इस प्रोसेस में जो बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं, दोज बैक्टीरिया आर कॉल्ड एमोनिफाइंग बैक्टीरिया. वो बैक्टीरिया क्या कहलाते हैं? दे आर कॉल्ड एमोनिफाइंग बैक्टीरिया. एमोनिफाइंग. सो व्हाट आर एमोनिफाइंग बैक्टीरिया? एमोनिफाइंग बैक्टीरिया जो है उसमें हमारे पास दे आर फॉर एग्जांपल प्रोटीन्स दे आर कन्वर्ट इनटू अमीनो एसिड्स. अमीनो एसिड में देयर इज अमीनो ग्रुप. तो ये जो अमोनिफाइंग बैक्टीरिया है ये क्या करेंगे, इस प्रोटीन अमीनो एसिड और फिर उससे क्या बनाएंगे, अमोनियम आयन बनाएंगे. दिस इज नोन एज व्हाट? एमोनिफाइंग बैक्टीरिया. ओके, एमोनिफाइंग बैक्टीरिया. और जो बैक्टीरिया इस अमोनिफाइंग बैक्टीरिया में इन्वॉल्व हैं, ठीक, अमोनिफाइंग बैक्टीरिया दे आर. सो what they do, this is either by the death from where the proteins are available, from where these DNA is available, from where all these, this is either by the death of the plants, death of the animals, death of the living organism, or from the excretion of plants and animals. वहाँ से ये available हो जाएंगे, ठीक. So नाइट्रोजन ये available हो जाएंगे. Then in the next step these are converted into nitrates. So there are nitrifying bacteria.
So nitrifying bacteria are those which convert this ammonium ion first into nitrites, okay, nitrites and nitrates. So there is the nitrifying bacteria are, okay, they are nitrosomonas. The nitrosomonas will convert this ammonium first into nitrites, sorry, उसमें उनकी conversion करेगा. That will be converted into nitrites. Then there is another bacteria which is called Nitrobacter, and the Nitrobacter will convert these nitrites into nitrates, and both of these bacteria, Nitrosomonas and Nitrobacter, so they will react with, for example, they will react with ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा. जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा सो अमोनियम विल कन्वर्ट फर्स्ट इनटू नाइट्राइट्स. फिर ये मज़ीद ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और उसके नतीजे में हमारे पास बनेगा क्या, नाइट्राइट्स, विच इज़ अ स्टेबल कंपाउंड. तो ये बन जाएंगे. फिर उसके बाद अगर इसने दैट कुड द प्रोसेस कैन बी रिवर्स्ड अगेन, एंड ये बन सकता है अमोनियम, एंड द प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन टेक दिस नाइट्राइट्स अगेन. तो ये जो हमारे पास अमोनियम है ये दो तरीक़ों से अवेलेबल हो सकता है. अगर आप एक वो जब नाइट्रोजन फिक्सेशन हो, और दूसरा दिस इज़ द फॉर्म ऑफ द नाइट्रोजन वेयर प्लांट्स कैन यूज़ इट. तो ये दो तरीक़ों से अवेलेबल हो सकता है. एक वो जो हमने पढ़ा नाइट्रोजन फिक्सेशन, वहाँ पर अमोनियम बन सकता है. नाइट्रोजन फिक्सेशन फिजिकल मेथड, केमिकल मेथड, बायोलॉजिकल मेथड, वहाँ से हो सकता है. ठीक. दूसरा ये कि जब प्रोटीन्स की ब्रेकडाउन हो तो वो प्रोसेस कहलाता है क्या, नाइट्रोजन फिक्सेशन. जब अमोनियम बनता है उस प्रोसेस में, और ये प्रोसेस कहलाता है क्या, अमोनिफिकेशन. लेकिन ये अमोनिया कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू नाइट्राइट्स एंड देन इनटू नाइट्रेट्स. But if this has to be converted into again into atmospheric nitrogen, so then there is a process which is known as denitrification, and the bacteria involved in this process are called denitrifying bacteria. The process is called denitrifying bacteria, and in these denitrifying bacteria, for example, Pseudomonas is involved here. Pseudomonas is a denitrifying bacteria. Pseudomonas is a denitrifying bacteria, and that will convert again this nitrates into nitrogen and oxygen में उनको convert करेगा. First उसकी denitrification, लेकिन finally, and this nitrogen goes back to the atmosphere. This goes back to the atmosphere. So this is called nitrogen cycle. To summarize it, हमारे पास 80% नाइट्रोजन है एटमॉस्फेयर में, बट दैट 80% नाइट्रोजन इज ऑफ नो यूज until it is converted into ammonium, into its compound. The process is known as nitrogen fixation. Physical method, केमिकल मेथड और बायोलॉजिकल मेथड के ज़रिए ये नाइट्रोजन फिक्सेशन हो सकती है. ये केमिकल मेथड हो, फिज़िकल हो या बायोलॉजिकल हो, इस केस में बनेगा क्या, अमोनियम आयन ही बनेगा, एंड देट इज़ टेकन इन बाय द प्लांट्स. अब ये फिज़िकल मेथड, केमिकल मेथड को मैंने रिवाइज़ किया है, लेकिन इन सारे प्रोसेस में हमारे पास बन जाएगा क्या, हमारे पास अमोनियम बनेगा. और इन सारे प्रोसेस में जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है, वहाँ पर उनमें जो एंजाइम इन्वॉल्व है दैट इज़ नोन एज व्हाट, नाइट्रोजिनेज. वो सेंसिटिव है ऑक्सीजन के लिए, तो प्लांट्स मुख्तलिफ तरीक़ों से इस नाइट्रोजिनेज एंजाइम को प्रोटेक्ट करता है. एनारोबिक को मसला नहीं होगा बिकॉज दे ऑलरेडी लिव इन एनारोबिक इन्वायरमेंट, देयर इज़ नो ऑक्सीजन. लेकिन जो एरोबिक नाइट्रोजन फिक्सेशन होगी वो कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, तो मैंने बताया कि वो उनके पास मुख्तलिफ तरीके होते हैं. दे कीप देयर रेट ऑफ रिस्पायरेशन हायर, तो जितना ऑक्सीजन होगा वो रिस्पायरेशन में इस्तेमाल होगा और इस प्रोसेस में इस्तेमाल नहीं होगा. ये एक तरीका है. दूसरा तरीका उनका ये है कि दे कैन लिव डीप इन द
इन द सॉइल या ऐसे इन्वायरमेंट में जहाँ पर ऑक्सीजन ना हो, या तीसरा तरीका ये है कि दे कैन प्रोटेक्ट देयर नाइट्रोजनेस बाय सम अदर एंजाइम्स, वो ऑक्सीजन को यूटिलाइज करेंगे। लेकिन सारे प्रोसेस में बनेगा क्या, अमोनियम आयन बनेगा। ओके, अमोनियम इज टेकन बाय द प्लांट्स, by the animals, and they convert them into more organic compounds, or say DNA, proteins, lipid, carbohydrates, chitin, enzymes, vitamins, सबका ये पार्ट होगा। लेकिन जब ये लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट्स और एनिमल्स की एक्सक्रीशन होगी या डेथ होगी, तो वो प्रोटीन्स और लिपिड्स और डीएनए ये सारी चीज़ें उसमें रिलीज़ हो जाएंगी और उसमें नाइट्रोजन होगा। तो वहाँ पर अब अमोनिफाइंग बैक्टीरिया होंगे जो इन प्रोटीन्स और चीज़ों की ब्रेक डाउन करके वहाँ से अमोनियम को रिलीज़ करेंगे। ये अमोनियम प्लांट्स और दोबारा यूज़ कर सकता है, लेकिन अगर इसने वापस एटमॉस्फेयर में जाना हो तो फिर इस वहाँ पर एमोनिफाइंग बैक्टीरिया ये काम करेंगे। अगर एटमॉस्फेयर में वापस जाना हो तो वहाँ पे नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, द प्रोसेस इज़ नोन एज व्हाट, नाइट्रिफिकेशन कहलाएगा। ये प्रोसेस क्या कहलाता है, नाइट्रिफिकेशन कहलाता है। और इसमें जो बैक्टीरिया इन्वॉल्व है वो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, सो नाइट्रोसोमोनास है जो अमोनियम को नाइट्राइट्स में कन्वर्ट करेगा, और फिर नाइट्रोबैक्टर है जो इसको कन्वर्ट करेगा इनटू नाइट्रेट्स। अगर इसने एटमॉस्फेयर में वापस जाना है तो फिर देयर आर डीनाइट्रिफिकेशन इज़ द प्रोसेस, और उसमें जो बैक्टीरिया इन्वॉल्व है वो कौन से हैं, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, और वो कौन सा है, सीरोमोनास है, और वो उस नाइट्राइट्स को अगेन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट करेगा और ये नाइट्रोजन वापस एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। दैट इज़ दैट। थैंक यू।